Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about furthermore from exercise 6.2 from question number 5th. Before proceeding exercise 6.2, please understand very carefully theorem number 6.1 and 2. Okay, 6.1 we already discussed in our earlier questions. 6.2 theorem number 6.2 is said when when two lines are A, B, C, D, E. Okay, when ratios are given AD divided by DB is equals to AE divided by EC. Okay, then line will be parallel, DE parallel to BC. This is theorem number 6.2. Okay, so according to this, please understand question number 5th. So directly we write solution here. So according to this is triangle PQR and internal triangle EDF and midpoint O. Okay, so according to this given in a question, DE parallel to OQ. DE, where is DE? This is DE. DE parallel to OQ. This line is parallel to this line. Okay, and DF parallel to OR. DF parallel to OR. Then prove that EF. Where is EF? EF पैरेलल टू OR. ओके, तो ये प्रूफ करना है EF जो है वो पैरेलल है QR है. सो लेट्स सी. ओके, फर्स्ट गिवन अकॉर्डिंग टू दैट भी लिखेंगे. ठीक है, गिवन लिखेंगे यहाँ पे, गिवन यहाँ पे लिखेंगे पूरा. उसके बाद अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है, कन्वर्स के लिए बोल रहे हैं. कन्वर्स मतलब उसका अपोजिट जब होगा व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल. ओके, दैट मींस PE divided by EQ is equals to PD divided by DO. Okay, this is equation number 1. And again from theorem 6.2. ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, we can say that EF divided by FR is equals to PD divided by DO. ठीक है, this is equation number 2. From equation 1 and 2, we can say that PE divided by EQ is equal, because both are equal to the same thing. Okay, so we can write here PF upon FR, PE upon EQ is equals to PF upon FR. Therefore we can say that this is another part, EF parallel to EF parallel to. ठीक है, बेसिक by therefore by basic proportionality theorem EF parallel to QR proved. Okay dear students, I hope you understand this very carefully. So this is a proof. ठीक है, समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया तो प्लीज रिवाइंड योर वीडियो अगेन एंड अगेन
until you not understand the concept of this. Okay. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये कन्वर्स नहीं है, ये डायरेक्टली क्या है, बेसिक अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा ये भी, और ये भी 6.1, मतलब दोनों एक ही है। बीपीटी इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब पाई थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। इतना चीजें करेक्ट कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वहां पे स्टडी करते रहना। इसमें गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू के पैरेलल, ठीक है। AC पैरेलल टू पी आर, AC पैरेलल टू पी आर, ओके। तो सो दैट BC पैरेलल टू क्यू आर। सो फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल। सो यहाँ पर है ए बी, ठीक है, एंड पी क्यू, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, द लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ओके। सो दैट मीन्स आवर प्रोपोर्शनलिटी इज, दिस इज O, okay. So our proportionality is QB divided by BO and PA divided by AQ by basic proportionality theorem, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या हो जाएगा, सेम इसके लिए हो जाएगा, इस वाले का इस तरफ में, और यहाँ पर क्या है, लास्ट में कॉमन क्या निकल के आ जाएगा, जस्ट लाइक सी हियर, ओके। AB पैरेलल टू PQ, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट, ठीक है। इसके लिए लिख रहा हूं पहले, तो वी कैन से दैट व्हेन AB पैरेलल टू PQ वी कैन से दैट बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम OB divided by BQ, okay, is equals to PA divided by AO, okay. Equation number 1, again we can say that, okay, for these terms by basic proportionality theorem, okay, we can say that this one PA divided by AO is equals to OC divided by OR, okay. So दोनों के थ्रू ही क्या हो रहे हैं, therefore by equation by 1 and 2 we can say that OB parallel OB divided by BQ divided by is equals to OC divided by OR, okay. So let's see, this is which one, OB divided by BQ, okay. This one is BQ, OB, this one is OB divided by BQ, and OC divided by CR, OR. CR होगा, ठीक है, CR। सो इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, BC पैरेलल टू QR करना, ठीक है।
BC, हाँ तो आगे ना, ये देखो इस ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल OBR, ठीक है, OBR ट्राइंगल से क्या ले लेंगे यहाँ पे, OB डिवाइडेड बाई BQ एंड OC डिवाइडेड बाई CR, ठीक है। तो ये बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट कि दिस लाइन BC इज पैरेलल टू द QR, वेरी सिंपल, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 8 आप लोग करेंगे, जस्ट इसका कन्वर्स रहेगा, वो उल्टा रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बोला हुआ है एक ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल में क्या हुआ है, एक मिड पॉइंट जस्ट लाइक गिवन हियर, गिवन क्या है, AD इज इक्वल्स टू DB, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड जस्ट लाइक DE पैरेलल टू BC, it is also given, okay, and according to this, so that शो करना है, यहाँ पे क्या शो करना है, AE इज इक्वल्स टू EC, AE इज इक्वल्स टू EC, बस यहाँ पे ये चीज शो कर लेना आपको, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, लेट्स सी हियर, ओके, जस्ट लाइक दिस इज गिवन DE पैरेलल टू BC, तो अकॉर्डिंग टू दिस by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC, ओके। सो वी कैन से दैट हियर, लेट्स सी हियर, AD डिवाइडेड बाई DB, AD इज इक्वल्स टू DB, वी कैन राइट इट एज अ AE इज डिवाइडेड बाई EC, इसको लिख लिया पहले, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, बिकॉज AD इज इक्वल्स टू DB, सो AD इज इक्वल्स टू DB 1/1, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी, या DB इज इक्वल्स टू DB, दोनों में से कोई भी चीज आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो EC एंड देन AE इज इक्वल्स टू EC, वेरी इजीली कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रूव्ड। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूव कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं क्वेश्चन नंबर 9। सो यहां पर क्या कर लेंगे, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, व्हाट इज प्रूफ दैट, AO BO एंड CO अपॉन DO, ठीक है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EF पैरेलल टू DC, ओके, एंड आल्सो इट इज पैरेलल टू AB, तीनों के पैरेलल हो जाएंगे ये, ठीक है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ADC we can write, now triangle ADC, इसको लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ADC, ओके, we can write here AE डिवाइडेड बाई, बिकॉज ये गिवन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल्स टू AO डिवाइडेड बाई OC, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड नाउ अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ABC, again
now triangle ABD, okay, from ABD से क्या करेंगे, we can write here from ABD is equals to, again we can write AE divided by ED is common on both, okay, and AD is equals to BO upon OD, BO upon OD, we can write it as a, okay, equation number second. From equation 1 and 2 we can write AO upon OC, okay, AE upon AD and AE upon AD is both are common, that is why we can write AO upon OC is equals to BO upon OD. ओके, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, बस एक्सचेंज कर लेते हैं वैल्यूज को, ओके, बस इस वैल्यूज को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट इट ऐसा, ओके, सो वी कैन राइट AO, देयरफॉर AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा CO अपॉन DO, OD को हम क्या लिख सकते हैं, DO, एंड नाउ इट इज proved. Okay dear students, finally this is proved. 10 क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इजी, ठीक है, थोड़ा हिंट देता हूँ उसके लिए मैं आपको।